when we see our constitutional makers, say if we quote B.R. Ambedkar, if you read his Constituent Assembly debates, he have warned future governments that there has to be a balance between affirmative action and reservation. And the moment you lose this balance, the efficacy and the real intent of reservation go away. एक इंसान को 7th रैंक है, उसको आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, और एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक है 500 कुछ, उसको आप ले रहे हो। जाहिर सी बात है ज्यादा काबिल कौन है? जिसने रैंक 5 लाई, ऑफ कोर्स। देन वी आर प्लेइंग विद द सिस्टम। इफ वी आर गिविंग आउट ऑफ 10 7 सीट्स हम रिजर्व क्लास को दे रहे हैं और 3 सीट्स हम ओपन मेरिट नहीं सब पॉपुलेशन को रख रहे हो, तो तुम सोसाइटी से मेरिट खत्म कर रहे हो। आप ये मसला है कि जो 70% हमारी पॉपुलेशन है, आप उसके लिए 30% रख रहे हो। तो यानी मैम, आई वांट टू डाइकोटमाइज दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओपन मेरिट एंड अनरिजर्व। जब आप ये कहते हो कि हम इक्वल फुटिंग देंगे, 50% ओपन मेरिट से होना चाहिए और 50% हमारा रिजर्व से होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है रिजर्वेशन। मेरा यही आर्गुमेंट है कि पहले ही गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर करे, हमारी पॉपुलेशन और बाकी चीज़ें जो भी है। और फर्स्टली जो हमारी अभी गवर्नमेंट चल रही है, एनसी की गवर्नमेंट अभी चल रही है, सीएम साहब को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक कमेटी फ्रेम करनी चाहिए और उसके तहत इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले ही कैसे रिजर्वेशन बनाई गई, 10% क्यों काटा गया। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ दो वही सुर में हूँ आपके साथ यास्मीन खान। अभी हाल ही में हमने रिजर्वेशन के मुद्दे पे एक डिस्कशन किया था एसटी ग्रुप के साथ, और उस डिस्कशन में उन्होंने अपने तासुरात रखे थे और इस बात पे बात की थी कि क्यों रिजर्वेशन उनके लिए ज़रूरी है। अभी कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो ओपन मेरिट कैटेगरी से, यानी कि रिजर्वेशन के खिलाफ, वो लगातार बात कर रहे हैं। अब जानेंगे इनसे कि ये क्यों रिजर्वेशन के खिलाफ है। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है उमर जमाल ने, जो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। बहुत शुक्रिया उमर हमें वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी कि रिजर्वेशन के खिलाफ डे 1 से आप फाइट कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन जो एक बैकबोन है किसी और कम्युनिटी के लिए, आप उसके खिलाफ क्यों हैं? देखिए, I want to make it clear at the outset that we are not against the concept of reservation per se, because that is something that has been envisaged in the Constitution of India, and we cannot shy away from it that there are certain communities that need emancipation, and it was with this view that the constitution makers brought reservation as a concept in our constitution. That being said, we demur and object against the new reservation policy that was brought in place recently. So ironically, what this new reservation policy did, it it reduced the seats for the open merit population, which constitute around 70% of the total population of Jammu and Kashmir, to just 30% of seats. So our objection is against the new reservation policy. See, when we see our constitutional makers, say if we quote B.R. Ambedkar, if you read his Constituent Assembly debates, he have warned future governments that there has to be a balance between affirmative action and reservation. And the moment you lose this balance, the efficacy and the real intent of reservation go away. So my opinion about the reservation is that there has to be reservation, because there are still certain communities that need emancipation, that need affirmative action to get them into the mainstream. But that doesn't mean that we will compromise merit, because if we start compromising merit, then obviously we will end up in mediocrity. So that is my my opinion, my perspective. I think it's a valid point. Now we have been joined by Khalid Sherwani. He is also very vocal about this issue. Khalid, आपसे जानना चाहूंगी, अगर रिजर्वेशन को हटाया गया और जो लोग सफर कर रहे हैं, तो किस तरह से उनकी लाइव्स को बेटर किया जा सकता है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है कहीं ना कहीं मेरिट को खत्म कर रही है, तो हाउ कैन वी बैलेंस बोथ? We have to understand basically the concept of reservation. इसका मकसद ये है कि हम इक्विटी लाए, ना कि इक्वालिटी लाए। मैं एक चीज़ समझने में फेल होता हूँ कि अगर एक आदमी है who is a gazetted officer and he belongs to a particular sect, वो अपने बच्चे को टॉप नॉच एजुकेशन दे सकता है। उसके बरक्स एक ओपन मेरिट वाला कैंडिडेट है जो उतना वेल ऑफ नहीं है, एंड हिज फादर कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम टू ए वेरी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन। उस बंदे को रिजर्वेशन होके वो 200 पॉइंट्स पे सिलेक्ट होता है, और एक ओपन मेरिट वाला पर्सन 400 पॉइंट्स पे सिलेक्ट नहीं होता है। हालांकि दोनों लोग एक ही एकेडमी में पढ़ते हैं, सेम टीचर्स पढ़ाते हैं और सेम रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसके हिसाब से जो होता है, जो ओपन मेरिट वाला कैंडिडेट है, वो बेचारा चकनाचूर हो जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो इनको
कैटेगरी है इट इज स्पेसिफिकली फॉर द पीपल ऑफ कैटेगरी। और जो हमें बोलते हैं कि ओपन मेरिट को 29% है एज ऑफ नाउ, ये बस ओपन मेरिट के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन फ्रॉम एसटी कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी और एनी अदर रिजर्व क्लास एंड ही इज एबल टू कम इन द ओपन कैटेगरी सीट, तो वो अपनी सीट तो वो नहीं रखेगा, वो एक तो मेरी सीट खाएगा और जो उसको अपनी सीट है वो भी बचा के रखेगा। इससे होता क्या है सोसाइटी में, इससे सोसाइटी में ये होता है कि मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो एक्सीलेंस होता है किसी या एफिशिएंसी होती है किसी सिस्टम की वो खत्म हो जाएगी। अब वाजिब सा सवाल है कैसे, डॉक्टर्स है, परसों पीजी का रिजल्ट आया, एक इंसान को 7th रैंक है, उसको आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, और एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक है 500 कुछ, उसको आप ले रहे हो। जाहिर सी बात है ज्यादा काबिल कौन है, जिसने रैंक 5 लाई, ऑफ कोर्स। देन वी आर प्लेइंग विद द सिस्टम। इफ वी आर गिविंग आउट ऑफ 10 7 सीट्स हम रिजर्व क्लास को दे रहे हैं और 3 सीट्स हम ओपन मेरिट नहीं सब पॉपुलेशन को रख रहे हो, तो तुम सोसाइटी से मेरिट खत्म कर रहे हो। और जब सोसाइटी से मेरिट खत्म होगी तो बचा ही क्या। Who is responsible for this? It is a collective failure. The main failure is of government because they have not been able to uplift these people. The reservation was meant just for 10 years. It has been 70 years since India has gained its independence, and we see it's still there. Whose failure is it? The failure of government. They are not able to eradicate, inequality and then there is one more problem. Reservation से ये होता है कि जो inequality एक सोसाइटी में है तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो, तुम इसको स्टेगनेंट रख रहे हो, तुम कोई अल्टरनेटिव मेजर्स नहीं लेते हो जिससे एक रिजर्व्ड क्लास वाला और ओपन मेरिट वाला सेम आ जाए। इससे देन इट विल गो फॉर इटर्निटी। फिर देन पीपल लाइक मी विल सफर फॉर एवर एंड दे पीपल हु शेयर द 30% ऑफ द पॉपुलेशन विल एंजॉय गेटिंग 70% ऑफ द पॉपुलेशन। खालिद का आर्ग्यूमेंट ये है कि इट्स फॉर द गवर्नमेंट टू ब्लेम बिकॉज शायद वो अपने 10 years में अपलिफ्ट नहीं कर पाए एक पर्टिकुलर सोसाइटी को। अभी वी हैव बीन जॉइंड बाय मीर जुहेब। आपसे जानना चाहूंगी, डू यू थिंक ये जो रिजर्वेशन का पूरा मसला है इसको पॉलिटिसाइज किया गया है? इसमें ओब्वियसली अगर आप देखोगे कि जो ST2 है उसको मतलब एक प्रोजेक्ट के थ्रू दिया गया है, वहाँ से थोपा गया है, यहाँ से इम्प्लीमेंट किया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, अगर आप मंडल कमीशन की क्लास भी देखेंगे या इंदिरा स्वामी जजमेंट भी देखेंगे, जब आप किसी को सब कैटेगराइजेशन कर रहे हो किसी भी कोटा को, आपको उसी कोटा में उनको जो है रिजर्वेशन कोटा देना है, बल्कि आपको ओपन मेरिट से नहीं काटना है। ओपन मेरिट से आपने काटा है 10% और आपने हमको एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बनाया है। तो गर्ज कहने का यही है, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन। जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है कि रिजर्वेशन रियलिटी है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है दे डिजर्व दिस। बट आप इसमें देखिए कि इसमें कितना क्रीमी लेयर है, जो पोश एरियाज में रह रहे हैं, जो वहाँ से वैकेट हुए हैं। तो आप ये मसला है कि जो 70% हमारी पॉपुलेशन है आप उसके लिए 30% रख रहे हो। तो यानी मैम आई वांट टू डाइकोटमाइज दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओपन मेरिट एंड अनरिजर्व्ड। जब आप ये कहते हो कि हम इक्वल फुटिंग देंगे, 50% ओपन मेरिट से होना चाहिए और 50% हमारा रिजर्व से होना चाहिए, लेकिन जब आप देखोगे वो पर्पस तब शुरू होगा जब आप 70% कोटा को ओपन के लिए रख रहे हो, तब जाके अनरिजर्व उसमें 40 to 45% ऑक्यूपाई करेंगे। तो वो पर्पस तब से शुरू हो रहा है। बट इसमें हम गवर्नमेंट से सिंस द डे वन हमने यही कहा कि इसको आप रैशनलाइज कीजिए। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सेंसस हमारी पॉपुलेशन 69% बन रही है। जो भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो उसको आप 70-30 रेशो के हिसाब से कीजिए। और उसमें अभी गवर्नमेंट से भी हमने डिमांड की रिसेंटली, अभी उस पर भी अनफॉर्चुनेटली उस पर भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी क्रिएट है। उमर साहब ने वर्बली जब सेकेंड कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उन्होंने जब बाहर निकले उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल क्लैरिटी आई है, हमारी गवर्नमेंट इस पर स्टैंड ले रही है कि हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक वर्बल एक ऑर्डर दिया है कि नहीं जी हमने सब कमेटी बनाई, उसके बाद दे डिपार्टेड टू द उमरा। लेकिन हमने जब जो इनकी वेबसाइट है DIPR वेबसाइट पे कि कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी रिव्यू मीटिंग LG साहब लेते थे वो उस पोर्टल पे आता था, लेकिन कैबिनेट मीटिंग का कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहे। एक साइड से आगा रूहुल्ला साहब कह रहे हैं कि बिजनेस रूल्स जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, हम इस पर कुछ नहीं कर रहे। दूसरी साइड से आप कह रहे हो कि सब कमेटी आई है। तो आई थिंक गैंग पलंग जो आगा साहब और गवर्नमेंट के दरमियान है वो नहीं बन रहा है। इनको क्लियरिटी लानी चाहिए कि ये सब कमेटी उन्होंने बनाई है या नहीं बनाई है और किस बेस पे बना रहे हैं।
अभी इलेक्शंस जब हुए तो हाल ही में कुछ जो ऐसे एरियाज थे जिनको प्रॉपरली ऐसा वो एसटी रिजर्व किया गया था बिकॉज ऑफ बीजेपी, एंड इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि इवन इफ उन्होंने एसटी भी उनको दे दिया बट वहाँ पे बीजेपी ने जीता नहीं उन एरियाज से। तो क्या लगता है जो अभी नए लोग ऐड हुए हैं, खत्रीज है जिसमें कुछ डोगराज भी है, डू यू थिंक वो डिजर्व करते हैं? नहीं मैम, अगर आप पूरे वो जो इलीट क्लब सारे इलीट क्लास है, दैट वाज बस कि जो इलेक्टोरल गेन जो है उसको गेन करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट प्रोजेक्ट हैज बीन फेल्ड मिजरेबली। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहे कि कास्ट सेंसस जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। आप जेन्युइन चीज़ों पे देखिए, अगर जिसको जितना हक है उसको आप दीजिए। अगर 70% पॉपुलेशन है, आप हमारे साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हो? देखो हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, हम किसी भी तरीके की सोशल फैब्रिक को खराब नहीं करना चाहते, बट आप रिजर्वेशन दीजिए, बट दैट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ मेरिट। एग्जैक्टली। नाउ वी हैव बीन जॉइंड बाय सुहेल फारूक, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। सुहेल, आपसे जानना चाहूंगी, अभी हाल ही में जब हमने एसटी ग्रुप से बात की तो उनका ये कहना है कि अगर जैसा कि उन्होंने बोला हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, बट एक सिविलाइज सोसाइटी का फंक्शनिंग जो है वो एक सिविलाइज्ड मैनर में होना चाहिए। तो एसटी वालों का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जब वो हॉस्पिटल गए उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, डॉक्टर हैड रिफ्यूज टू ट्रीट देयर पेशेंट बिकॉज उन्हें बोले बड़े स्टिंकी लोग होते हैं। एंड हाल ही में अभी एक लेडी ने करना साइड से सड़क पे उसकी डिलीवरी हो गई। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये जो रिजर्वेशन है, आपको नहीं लगता ये उनके लिए एक वो सिक्योर पॉइंट है कि नहीं चलो कल को सोसाइटी में हमारा भी कोई से होगा इस चीज़ के थ्रू? Firstly, thankful to your whole team for raising our voices. Firstly, there is a quote which I have written from myself, which is, I believe in meritocracy, I respect positive discrimination, and I believe judiciary. This is a quote. Firstly, अगर हम बात करें रिजर्वेशन की एसटी के रिलेटेड, उनका ये आर्गुमेंट हमेशा रहा है कि हम दबे हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे वो किसी भी फार फ्लंग एरिया से हो। उनका हमेशा ये आर्गुमेंट रहा है कि हम दबे हुए लोग हैं और हमारी तरफ कोई ध्यान कभी नहीं दिया गया। और हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जहाँ बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आज एसटी के लोग बैठे हैं, और स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। अब जो इनका आर्गुमेंट है ये कि हम जो इनके एरियाज़ है वो इतने डेवलप्ड नहीं है। अगर आप ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कोई एरिया उतना डेवलप्ड है ही नहीं। अब जो एसटी वाले हैं उनका वो एटमॉस्फेयर होता है कि वो अपर रीजन्स में रहते हैं, क्योंकि फ्लोरा और फौना इसके बीच में डिफरेंसेस आते हैं। और उनका यही आर्गुमेंट हमेशा रहा है कि हम दबे हुए लोग हैं, हमें चांस नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि जब से रिजर्वेशन का सिस्टम आया है यहाँ पे तब से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जो हमारे कोटा से अब 10% गया, 33% रह गया हमारा। अब जो यहाँ तक कि 70% हमारी पॉपुलेशन ओपन मेरिट, अब हम 33% से कहाँ जाए? हमारा भी सोचो थोड़ा सा। तो who is to be blamed? Is it the ST group or the government? नो, एसटी ग्रुप जब पिछली बार ही जब 10% कोटा दिया गया ST2 के लिए, वो उनका वो आर्गुमेंट सही था, उनको वॉइस रेज करनी थी अपने हक के लिए। लेकिन जब गवर्नमेंट ने वो पास किया, उनको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी थी। हमारी पॉपुलेशन, ओपन मेरिट की पॉपुलेशन है, वो उनको कंसिडर करनी थी। वो ऐसे ही ब्लाइंडली उनको 10% दे दिया, और जब वो सब कैटेगरीज बनती है रिजर्वेशन में, वो उसी मेरिट में देनी चाहिए। जो उनका 10% चल रहा था उसमें से ही देनी थी। हमारे में से काटने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही हमें 33% मिला था, अब उसमें से भी अब और काटने की, मुझे लगता है और काटने की कोशिश हो रही है। लेकिन ओवरऑल मेरी रिक्वेस्ट रही गवर्नमेंट से, प्लीज़ कंसिडर दीज थिंग्स, फर्स्टली आवर पॉपुलेशन एंड द अपॉर्चुनिटीज़। रिजर्वेशन इज़ नॉट अबाउट द किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, ये अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है रिजर्वेशन। मेरा यही आर्गुमेंट है कि पहले ही गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर करे, हमारी पॉपुलेशन और बाकी चीज़ें जो भी है। और फर्स्टली जो हमारी अभी गवर्नमेंट चल रही है, NC की गवर्नमेंट अभी चल रही है, CM साहब को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक कमेटी फ्रेम करनी चाहिए, और उसके तहत इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले ही कैसे रिजर्वेशन बनाई गई, 10% क्यों काटा गया, और
this reservation was totally in contravention to the previous judgments. अब देख ले इंदिरा साहनी की जजमेंट, देख ले मंडल कमीशन के, देखिए आप रूल्स देख ले, दिस वाज टोटली अगेंस्ट दैट. बट जब हमने एसटी ग्रुप से बात की तो उनका ये कहना है कि जो गुजर्स बकरवाल होते हैं वो लैंडलेस लोग हैं, नोमैड्स होते हैं, उनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं होती है। तो ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ जिसकी गवर्नमेंट बहुत बात करी है, या फिर अगर हम स्कूल्स की बात करें तो उनके मोबाइल स्कूल्स होते हैं जो ऑपरेशनल होते ही नहीं है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है पूरे साल। या फिर जैसे अगर हम श्रीनगर में रहते हैं तो एटलीस्ट वी हैव एक्सेस टू सम गुड इंस्टीट्यूशंस, चाहे DPS हो या बाकी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, या वी हैव एक्सेस टू इंस्टीट्यूशंस लाइक आकाश वगैरह जहाँ पे हम कोचिंग कर सकते हैं। तो उन लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हाउ डू यू थिंक वी कैन ब्रिज द गैप? देखिए, जो बकरवाल्स की बात आपने की, वो लैंडलेस लोग होते हैं। लैंडलेस इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई ज़मीन है ही नहीं। मैं आपको प्रूफ दूंगा उनके पास कितनी ज़मीनें होती हैं। मेरे दोस्त है बकरवाल कम्युनिटी से, मेरे दोस्त है, मेरे घर आते हैं, मेरे घर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, मेरे साथ रहते हैं। उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी मेरे पास नहीं है। मैं ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास उतनी ये प्रॉपर्टी नहीं है जितनी उनके पास है। अगर आप ये चीज़ देखोगे कि बकरवाल उनके पास कितना कैटल होता है, वो अगर आप यहाँ से फिर 10 ओपन मेरिट हाउस होल्ड्स को उठाएंगे और यहाँ से एक बकरवाल हाउस होल्ड को उठाएंगे, कंपेयर मुझे लगता है बकरवाल के पास ज़्यादा होगा। अब वो उनका आर्गुमेंट है कि हम लैंडलेस लोग हैं। उनका वो बिहेवियर होता है, उससे उनको कैटल अपना लेना पड़ता है हायर रीचेस पे। समर में उनको हायर रीचेस पे जाना पड़ता है अपने कैटल को जिंदा रखने के लिए। ये दिस इज अ टोटली बेसलेस आर्गुमेंट कि वो लैंडलेस लोग। Okay, so you deny this, right? Yes, I totally Okay, so उमर के पास फिर से एक बार ही जाएंगे और इनसे बात करेंगे। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जब रिजर्वेशन की बात उठी, चाहे सोशल मीडिया या मीडिया, चाहे प्रिंट की भी बात करें, तो एक आर्ग्यूमेंट रहा है कि उन्होंने बोला स्टीरियोटाइपिंग की बात होती है कि अगर आपको किसी को कुछ ऑफेंड करना है तो आप उसको बोलते हो यू लुक लाइक ए गुज्जर, यू लुक लाइक ए बकरवाल। तो डू यू थिंक एक सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह का आर्ग्यूमेंट होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा। my heart bleeds when I see people engaging in Twitter, चंद लाइकों के लिए क्या क्या लिखते हैं। they stoop so low, they abuse each other. I believe if you have to object against new reservation policy, there has to be certain limiters, there has to be certain consideration which you have to keep in mind. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंसान को गाली देंगे। it is from the both side. कुछ रिजर्व कैटेगरी से भी ऐसे लोग हैं जो गाली गलोच में पे उतरते हैं, और ओपन मेरिट से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गाली गलोच पे उतरते हैं। दिस इज हाईली कंडेमनेबल। ऐसा होना नहीं चाहिए। वी आर लिविंग इन ए सिविलाइज सोसाइटी। अगर हमें डिबेट और डिस्कशन में एंगेज होना, इट हैज़ टू बी रेस्पेक्टफुली। तो दूसरी बात, अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मसला जो है कि रिजर्वेशन अगर 70 साल से चलती आ रही है कि लोग क्यों इमेंसिपेट नहीं हुए। इसी साल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उन्होंने कमेंटेड दैट देयर शुड बी सब कैटेगराइजेशन ऑफ STs एंड SCs। जैसे में OBC में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही ST और SC में भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जो ST और SC कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो उनका लीड क्लास होता है, वही रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं। जो बिछड़े और डिसएडवांटेज लोग हैं वो बेचारे पीछे ही रह जाते हैं। सो आई बिलीव कि वी शुड make a comprehensive review of the current reservation policy and should make some systematic changes. Only then we can expect कि we will progress as a society. बिल्कुल। खालिद, ब्रीफली आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सॉल्यूशन रह सकता है इस पूरे मुद्दे का? See, we basically have to understand that a reservation is not a political tool, but a social engineering tool that's meant to uplift the people. So it's only possible जब government एक multi-faced एक approach ले to uplift the communities. क्या होता है कि जो क्रीमी लेयर ऑफ SC ST होते हैं, जिनको दुनिया की हर कोई आसाइश मैसर होती है, वो फ़ायदा उठाते हैं इसका। और जो बेचारा गरीब इंसान होता है, जो पिछड़ा इंसान होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। ही इज़ स्टिल डाइंग टू बाय ए कॉपी एंड पेन। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सर्वे कराइए, आप देखिए, दिस इज़ द रियलिटी। वी कैन नॉट डिनाई द नीड फॉर रिजर्वेशन। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं एफर्ट कर पाते हैं पढ़ाई, जो कुछ ऐसे एरियाओं में रहते हैं जहाँ स्कूल भी अवेलेबल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि उनको रिजर्वेशन मत दो, ये तो नाइंसाफ़ी है। इंसाफ होना चाहिए।
कैटेगरी वालों के साथ भी और ओपन मेरिट वालों के साथ भी। अब सोल्यूशन क्या है? वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। फर्स्टली वी हैव टू गेट डेटा, क्योंकि व्हेन you have the data then only you can manage it. Unless you don't have a data, तो आप क्या कर पाओगे? गवर्नमेंट को एक सेंसस करना चाहिए कि कितने लोग हैं जिनको SC है या ST है या कोई भी और कैटेगरी है जो सच में डिजर्व करते हैं एक ऐसी अपलिफ्टमेंट पॉलिसी जिससे वो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अपग्रेड हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि you have to strike a balance, that there should not be injustice to the people of open merit category in the name of giving or helping the reserved people. Point number 3, there genuinely are people who don't have avenues and access to the modern education or other fields which can uplift them. Then they should be given a reservation as per need and as per, in my opinion, economic status. For example, there is a person, his father is a gazetted officer. He can afford to send his son anywhere. Just because he speak a particular language or belong to a particular area should not entitle him to something that an open merit student is not entitled to, just because he holds that piece of paper. Meanwhile, if there is another person who does not have access to these opportunities, he must and should be given opportunities. That's what I vouch for. ज़ुहैब, थोड़ा ब्रीफली आप बताएं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है अभी जो गवर्नमेंट है? देखिए मैम, हम वेट कर रहे थे कि सब कमेटी इंस्टीट्यूट हुई है, बट अगेन टेलिंग यू कि एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है। सब कमेटी का जो DIPR वेबसाइट है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। तो हमें एक ब्रूट मैंडेट वी हैव गिवन टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमें ऑनरेबल CM पे एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि उन्होंने इस बेस पे भी बहुत ज़्यादा वोट लिया है। तो हम उनका वेट करेंगे। अगला असेंबली सेशन आ रहा है, वहाँ से अकाउंटेबिलिटी सीख करेंगे, कोशिश करेंगे, अपोजिशन से भी बात कराएंगे कि सब कमेटी पे क्या है। वी हैव रीच्ड पर्सनली, किसी ना सेक्रेटरीट के पास इसका कुछ भी ऑर्डर आया, ना गैर के पास। हमने जो निजी इनके ऑफिसर्स है वहाँ पे, किसी के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि सब कमेटी बनी। लेकिन हम वेट ही कर सकते हैं। बट अगेन आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो हम पिछले 10-15 दिनों से एक स्लर अब्यूजेज, सेमेंटिक अब्यूजेज एक साइड से हो रहे हैं, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस चीज़ के लिए कोई स्कोप नहीं है। एटलीस्ट आप डेकोरम मेंटेन कीजिए, सोशल फैब्रिक को मेंटेन कीजिए। लेट होल ओन्स लाइज ऑन द गवर्नमेंट। हम चाहते हैं गवर्नमेंट इस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी को रखे कि हर किसी के साथ जो इक्वल फुटिंग इस पे मिले। बिल्कुल, एक बहुत वैलिड पॉइंट है। सुहेल, जल्दी आपसे भी जानना चाहेंगे, थोड़ा ब्रीफली बताएं कि किस तरह से इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। जी, फर्स्टली ये गवर्नमेंट का काम है। NC ने इसी बेस पे वोट भी लिए हैं और हमेशा कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश की है, और लेकिन वो हर वक्त कामयाब नहीं हुआ है। इस बार भी, इस इलेक्शन में भी उन्होंने इसी बात पे वोट उठाए हैं कि हम रिजर्वेशन पे बात उठाएंगे, ओपन मेरिट को मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके उतना हम इनका कोटा इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अभी तक जब असेंबली के ये भी हुए, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर या कमेटी नहीं बनी है अभी तक। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। जी, तो अभी ये जो सारा डिस्कशन था हमने सम अप किया ओपन मेरिट कैटेगरी के लोगों के साथ, और इनके जो पॉइंट्स थे वो काफ़ी वैलिड थे कि एक ऐसा सिस्टम वो फॉर्म होना चाहिए जिससे एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर हो। एक ऐसा सिस्टम फॉर्म होना चाहिए कि पहले सर्वे होना चाहिए और फिर जो नीडी है सिर्फ उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो क्रीमी लेयर की इन्होंने अभी बात की कि जो वेल सेटल्ड है लेकिन अभी भी वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी इन्होंने अपोज किया है। आवाज़ द वॉइस के लिए यास्मीन खान।